So let me introduce our second speaker. Our second speaker is Mr. Sandeep Marwa. Sandeep Marwa, sir, is Indian film producer, director, educator, journalist, and a businessman. Sir, you are the founder and president of Asian Academy of Film and Television. You are also Chief Scout of India and founder of Noida Film City. It is our privilege to have with you us on the webinar. Kindly keep your concern for this webinar. Please, sir. He's muted. Just a minute. वहां से लॉक कर दिया आपने, ठीक है जी जी। मैं 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। Whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you're on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth. But the fact is, there are 2 things which are much more beautiful than what you can think, whatever your eyes can see right now. And these 2 things are your thinking and your feelings. And the best part is, both the things are right within you. On this very auspicious day, let's pray, hey Lord, give me good thinking, give me good feelings, so that I can do good deeds. And through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe in, and I presume that you will also believe in the same. Now, the best part is that the whole film, television, and media is based on these 2 very important principles: thinking out of the box and anything and everything full of emotions. Trust me, if you have these 2 things with you, you can become a filmmaker. Whether you are in New York, whether you're in Hollywood, whether you are in Noida, Mumbai, Madras, Calcutta, Lucknow, any part of the world. Trust me. Now, this everyone has to understand, that unless and until you will develop your thinking, develop your emotions, you will never be able to get into this beautiful, most lucrative, attractive, fascinating, and a sweet business. This is the most glamorous business, but then people, they look only at the glamour. They forget to look at the hard work, which is to be put in to become that kind of a star or that kind of a known personality. Now, keeping that in mind, I mean, it's very important to tell on this webinar that way back in 1986, I designed Film City. I was just 26-year-old and I had a very heavy, big dreams. And I also wanted to be in films, television, and media business. And nobody was there to help me. No one was there to support me. Probably today, the position is still the same. There are hundreds and thousands of young aspirants who are capable. They have the capacity. But they don't have a right guidance. And I made it a point that first we must have more centers of film, television, and media. There was only Bombay, Calcutta, and Madras. ये 3 सेंटर थे। इन तीनों सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा काम बंबई में, फिर मद्रास में, और फिर थोड़ा सा काम कलकत्ता में हुआ करता था। मुझे एक फिल्म सिटी क्रिएट करनी पड़ी देश के अंदर, और नोएडा के अंदर एक फिल्म सिटी स्थापित हुई। आज मैं बड़े खुशी से कह सकता हूं कि नोएडा फिल्म सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिल्म सिटी इन द वर्ल्ड। It's a 100-acre complex, 75 acres outdoor, 25 acres indoor, 16 studios. Out of 16 studios, 350 channels are being broadcast to 162 countries, 24/7. And 17,000 media professionals, they are working in this film city. And the cascading effect is that more than 150,000 people, they have been able to earn their bread from Noida Film City. And I'm very happy that I could do something for the nation. And when it comes to Marva Studios, I mean, it was very important for me to be the first one, and also to churn out something so that people should have trust in me. And I'm happy that in a span of all these years, we have churned out 4,500 television programs for more than 50 channels, around about 125 feature films in 8 to 9 languages, 5,000 training films, and my production company has made something like 3,000 short films, and we have given opportunity to around about 19,000 media professionals from 145 countries of the world. Now, and luckily, which you forgot to say, I have got now 7 world records to my credit. And I have neither worked for rewards, neither I have worked for rewards. I have worked because I love this business.
I'm a passionate about films, television, and media business, and I have always believed that work silently and let your work speak about you. And I'm happy that we have we have created this film city for youngsters, newcomers, for people who want to get into film, television, and media business. Let them learn first, let them get into a proper education, think, plan, decide about their career, sitting back into a film school, a media school, a journalism school, a fashion and design school, animation school. I've got 14 colleges now, which I'm running for youngsters at the most cost-effective training in the world, so that they can grow from here and can work anywhere in the world. If you're a trained artist, if you're a trained technician, you will never have problem in getting work, whether you are in Lucknow or you're in Noida or you are any part of the world. Now imagine people who have come to me from 145 countries of the world. They're not in India. They are working back into their own countries. They're working back into their own states. They're working back into their own cities. और आप समझिए कि एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन हमने स्थापित किया। देश का पहला प्राइवेट फिल्म स्कूल था, देश का चौथा फिल्म स्कूल था। जब फिल्म सिटी बनाई तो लोगों ने बेवकूफ़ बोला, जब स्टूडियो तैयार किया तब लोगों ने बेवकूफ़ बोला, जब हमने एशियन एकेडमी बनाई तब लोगों ने बेवकूफ़ बोला। अब मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 800 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लेकर हिंदुस्तान में आ चुका हूँ। और दुनिया के करीब 60 सरकारों ने, 60 दुनिया के 60 मुल्कों की सरकारों ने हमें अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये मेरा अभी 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनके तैयार हुआ है। अब हकीकत ये है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे लगता है मैं बंबई भाग जाऊं। बंबई ओवरलोड हो चुका है। वो कहता है मैं मद्रास भाग जाऊं, वहां भाषा का तकाजा है। मैं कलकत्ता चला जाऊं, वहां काम बहुत थोड़ा है। तो उसका सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ नोएडा फिल्म सिटी आने का, कि एक लोगों को जागृति मिली कि नोएडा जिसको कोई जानता नहीं था, जैसे लोग कहते थे नो आइडिया, लोग कहते थे यूपी अरे उल्टा पुल्टा जाना ही नहीं, वहां पर एक फिल्म सिटी स्थापित करके और एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तैयार करके हमने ये कायम किया पूरे देश के लिए कि फिल्म का काम कहीं भी किया जा सकता है। आज स्टूडेंट हमारे यहाँ से सीखकर कोई ऐसा 28 प्रदेश, 27 प्रदेश और 9 यूनियन टेरिटरी में आज हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा शहर नहीं बचा। लेकिन क्या चाहिए सबसे ज्यादा? एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग कि किस तरीके से फिल्मों का निर्माण करना है। अगर एक दफा अगर आप जान जाते हैं तो किसी भी शहर गली कूचे में खड़े होकर आप फिल्म बना सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद आता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उड़ीसा, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया कि साहब हमारे प्रदेशों में आ जाइए और एक फिल्म सिटी तैयार कर दीजिए नोएडा की तरह। मैंने कहा साहब मुझे एक फिल्म सिटी
तो मैं कह रहा था कि इन इन तमाम प्रदेशों के चीफ मिनिस्टरों ने हमें निवेदन किया कि फिल्म सिटी खोली जाए, लेकिन मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मुझे 25 साल लग गए एक फिल्म सिटी को तैयार करने में, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं हर जगह जाके फिल्म सिटी खोलूं। तो ये सुनने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि जो फिल्म, टीवी और मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं कि लखनऊ से नोएडा सिर्फ 4 घंटे का रास्ता रह गया है, एक नया हाईवे बन गया है। पहले बहुत टाइम लगा करता था। जो बच्चा 4 घंटे का सफर तय नहीं कर सकता, वो फिल्म, टीवी, मीडिया में क्या आएगा, मुझे पहले इस बात का फिक्र होना शुरू हो गया। तो इसलिए उन लोगों को इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि घर छोड़कर नोएडा तक आए, अपना काम सीखें और उसके बाद नो लुकिंग बैक। क्योंकि एक दफा आपने अच्छा काम सीख लिया, आप, जरूरी बात है, कामयाब होके ही रहेंगे। इस पूरी फिल्म ट्रेड के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है दृढ़ता। पैशन तो है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो वो जज्बा जो पैदा होता है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन में आकर पैदा होता है, जहां उसको अपने तमाम जो उसकी जितनी काबिलियतें हैं उनको निखारने का इंस्टीट्यूशन के खर्चे के ऊपर मौका मिलता है। अगर आज एक फिल्म कहे कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूं तो वो 2, 4, 5 लाख रुपया फूकेगा और कुछ नहीं बनेगा। लेकिन लेकिन ऐसे लोगों के लिए 14 साल पहले मैंने एक नया मकाम हासिल करके दिया था, वो था सेलफोन सिनेमा। मैंने एक इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलफोन सिनेमा शुरू किया और लोगों को बोला कि आप अपने मोबाइल से फिल्म बनाइए, इसमें भी एक वीडियो कैमरा लगा हुआ है। और ये मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने दुनिया का पहला मोबाइल फिल्म का सिनेमा फेस्टिवल शुरू किया और हिंदुस्तान की पहली फिल्म मैंने मोबाइल के ऊपर बना के दी। आदि फिल्म नोएडा में, आदि फिल्म न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और हमारे यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये फिल्म बनाई थी, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि छोटी फिल्में भी मोबाइल पे बनाई जा सकती हैं और दूसरे कैमरों के ऊपर भी छोटी फिल्में बनाई जा सकती हैं। स्कोप इतना बढ़ गया है। 25-30, आप समझिए 27 साल पहले मेरे मुंह से एक स्टेटमेंट निकल गई थी कि हिंदुस्तान की गली गली में फिल्में बनेंगी। तो लोग हंसने लगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। अभी तो कुल 4 सेंटर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, और अब मतलब दिल्ली मतलब नोएडा, और अब उसके बाद हैदराबाद में सेंटर खुला। अब ऐसा हो गया है कि हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर फिल्म के सेटअप खुल गए हैं। कैमरे मिल सकते हैं, एडिटिंग मिल सकती है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो सकता है, स्टाफ वहां पहुंच गया है और आप फिल्में किसी भी जगह पे खड़े होकर बना सकते हैं। जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो हमारी भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हमारी मदद की, और जितनी खूबसूरत जगहें हैं जो खासतौर पे टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं, वहां पर तमाम फैसिलिटीज फिल्म, टीवी, मीडिया की उपलब्ध कराने का वायदा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सी शिक्षा और ट्रेनिंग, थोड़ा सा तजुर्बा, और कोई भी किसी भी शहर के अंदर अगर उसके पास सोच है, जोश है, लगन है, उम्मीद है, आगे बढ़ने की क्षमता है और कुछ करने का जज्बा है, तो वो जरूर फिल्म बना सकता है। और इसके बावजूद भी अगर उसे मदद की जरूरत है तो आप समझिए कि आप वो उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा और वो जरूर फिल्म बनाएगा। डिसेबिलिटी के ऊपर, अगर कोई डिसेबिलिटी के ऊपर फिल्म बनाना चाहता है तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में हर इवेंट में मैं बोलता हूं कि मैं आपको पूरी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आप डिसेबिलिटी के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं आपको पूरी फैसिलिटी में हुआ करवाऊंगा, सामने आइए। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप सीखे हुए हैं और फिर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो हमारे भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। नहीं तो, और फिल्म ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। फिल्म मेकिंग इतनी महंगी है कि फिल्म मेकिंग के टाइम पे फिल्म ट्रेनिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और कोई बड़ा डायरेक्टर, फिल्म मेकर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर प्रोडक्शन करते वक्त आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपना प्रोफेशनल काम करेगा कि आपको ट्रेनिंग देगा। तो मैं समझता हूं कि बातें तो और भी बहुत सी हैं, क्योंकि स्पीकर बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए शायद मैं यहाँ पर लगाम देता हूं, इतना कहते हुए कि जब नोएडा फिल्म सिटी का प्रभाव बढ़ा तो ये देख लीजिए
कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, भोजपुरी एक फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, एक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है। हमारा एक स्टूडेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उस हरियाणवी लड़का था और उसने एक पिक्चर बनाई मेरे स्टूडियो में, धाकड़ छोरा। मैंने उसकी पूरी मदद की। वो 5 लाख की पिक्चर 1.5 करोड़ का बिजनेस कर गई और उसके बाद वो लड़का हरियाणवी सिनेमा का स्टार बन गया। वो अब तक मैं हिसाब लगा रहा था, वो करीब 150 फीचर फिल्में कर चुका है, कोठी बना ली, गाड़ी ले ली, स्टार बन गया अब वो। और एक छोटे से घर को बिलोंग करता था, बादशाह हुआ है। जिस गली से निकल जाता है वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग उसको देखने के लिए, छूने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से एक छोटे शहर का लड़का भी कितना बड़ा स्टार बन गया है, ये एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और जो बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करना चाहते, वो फिर हिट एंड ट्रायल पे फिल्में बनाएं, कोशिश करें, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे अपनी फिल्म टूटी भजी लगाएं और करत करत अभ्यास के फिर जर्मती होत सुजान 5-10 साल में कहीं ना कहीं फिल्म मेकर बन जाएगा। अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको पूरी लगन के साथ एक दफा फिल्म मेकिंग को सीखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास इसके बाद भी कोई सवाल होंगे तो मैं यहाँ बैठा हूं, आपके सवालों का उत्तर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपका अनुभव हम सभी के लिए काफी हमारे करियर के लिए भी काफी उपयोगी होगा। और एक कहावत है, काफी मशहूर कहावत है कि भटकते हुए ही सही मंजिल तो मिल ही जाती है, गुमराह वो हुए जो घर से कभी बाहर निकले ही नहीं। आपने जिस अभियान की शुरुआत पहले की थी और जो आपने कहा था, जो आपके मुंह से निकल गया था कि एक समय ऐसा आएगा हिंदुस्तान में जहां गली गली में फिल्में बनेंगी, तो आज ये वक्त आ गया है और आपकी बात साबित हो चुकी है। आज छोटे शहरों में फिल्म बन रही है। मुंबई से लोग लखनऊ आ रहे हैं, मेरठ आ रहे हैं, पटना जा रहे हैं। तो आपने जो कहा था, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब लोग अनुभवी होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनकी जुबान पे सरस्वती आके बस जाती है। तो आपकी जुबान पे सरस्वती आके बसी थी और उसी की वजह से जो आपने कहा था वो सच साबित होता जा रहा है। आपने अपना वक्त दिया, आपका शुक्रिया।